प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह 5 बजे आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। सिलसिलावार तफसीरी बाइबल सेशन में जिसमें हम आयत ब आयत, चैप्टर ब चैप्टर खुदावंद के हुजूर आगे बढ़ते हैं, उसके दिए हुए फजल से खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज सुबह आपको वेलकम करते हैं और सारा इज्जत जलाल अपने ज़िंदा मालिक खुदावंद यीशु को देते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यूं ही मोहब्बत में उसका प्रचार करते जाएं, उसके नाम को जलाल देते जाएं, आजिज़ी से इनकसाई से खुदावंद के हजूर से रोज़ की रोटी लें और उसी के नाम को जलाल दें। आए प्रस्तिश से इबादत का आगाज़ करते हैं और उसी के नाम को जलाल देते हैं। जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई, ऐ खुदा के ये जीवन मिलया मिलया, आशीष आई ठहरी, बरकत आई आई, ऐ खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए, ऐ खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई, ऐ खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए, ऐ खुदा। मेरी टाल ओ बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा। मेरी टाल ओ बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख सुख दा साथी, मेरे नाल नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा साथी, मेरे नाल नाल चलदा। ओ ना मैं अकना ना मैं थकना, करांगा महिमा ऐ खुदा के ये। ना मैं अकना ना मैं थकना, करांगा महिमा ऐ खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष ठहरी, बरकत आई ऐ खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए, ऐ खुदा। ईमान जो मैं तरया, पला यीशु दा फड़या। ईमान जो मैं तरया, पला यीशु दा फड़या। ओने तरस मेरे ते खा, मैनू चंगा है करया। ओने तरस मेरे ते खा, मैनू चंगा है करया। दावे चढ़ के डुबे तर गए, दुश्मन हर गए, ऐ खुदा। ओ दावे चढ़ के डुबे तर गए, दुश्मन हर गए, ऐ खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष ठहरी, बरकत आई ऐ खुदा। ओ बंधन टूट
ٹوٹ گئے غم بھی مک گئے اتھرو سک گئے اے خدا یسو جیون دا دریا وچ چاہنا ترنا یسو جیون دا دریا وچ چاہنا ترنا مینوں پاپا چو کڈیا ہاتھ یسو نے پھڑیا مینوں پاپا چو کڈیا ہاتھ یسو نے پھڑیا او نہ کوئی لبیا نہ کوئی ہونا تیرے جیا سونا اے خدا او نہ کوئی لبیا نہ کوئی ہونا تیرے جیا سونا اے خدا او جیون ملیا آشیش ٹھہری برکت آئی اے خدا او بندھن ٹوٹ گئے غم بھی مک گئے اتھرو سک گئے اے خدا او جیون ملیا آشیش ٹھہری برکت آئی اے خدا او نہ میں اکڑا نہ میں تھکنا کراں گا مہما اے خدا او دعوے چڑھ گئے ڈبے تر گئے دشمن ہر گئے اے خدا او نہ کوئی لبیا نہ کوئی ہونا تیرے جیا سونا اے خدا پریز دا لارڈ آئیں یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیے وہ برکتوں کا خدا ہے وہ بندھن توڑنے والا خدا ہے وہ غم کو دور کرنے والا خدا ہے وہ آنسوؤں کو پہنچنے والا خدا ہے وہ جیون میں جو ہے باہر ڈوبنے سے بچاتا ہے مشکل شکر گزاری کرتے ہیں آئیں تلاوت خداوندی کریں آپ کو سلسلہ وار بائبل کی تفسیر میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آئیں کتاب مقدس کو اپنی اصلاح کے لیے ترقی کے لیے بحالی کے لیے اس جیون کی روٹی کو لینے کے لیے آئیں تلاوت خداوندی کریں ہم غلطیوں کے خط میں آج دوسرا دن ہے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آئیں ہم پہلے چیپٹر میں ہم نے تقریباً 3 آیات دیکھی تھی تو آئے ہم تلاوت خداوندی کریں گے تو 4 آیت سے ہم 10ویں آیت تک دیکھیں گے تو 10ویں آیت 4 آیت سے 10ویں آیت تک یہ تقریباً 6 آیتیں بنتی ہیں سسٹر ثنا آپ تلاوت کر سکتی ہیں اچھا آئیے سسٹر ثنا کے ساتھ مل کر غلطیوں کے خط اس کے پہلا چیپٹر اس کی 4 آیت سے 10ویں آیت تک تلاوت خداوندی کریں گے آپ بھی بائبل مقدس کو نکالیے اور آج آپ جب آئیں گے تب میں یہ جگہ چھوڑوں گا آپ آئیے ہاں جی خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو 4 باب سے جی اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہاں سے خلاصی بخشے اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے آمین میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے مگر وہ دوسری نہیں البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو
मलमून हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलमून है, मलाउन है। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देते हैं और उसी की बड़ाई करते हैं। आप सबको, जितने लोग ऑनलाइन हैं, आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं, बने रहिए। जिशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, अलीशा गिल की ममा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, बाजी रुखसाना को, और अब्राहम ताहिर को गुड मॉर्निंग कहते हैं, अब्राहम ताहिर की ममा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, अजीमुल्लाह को गुड मॉर्निंग करते हैं, और जितने लोग साथ जुड़ते जाएंगे उनको भी, और जितने यहाँ पर आज शुभ इबादत में हैं आपको भी गुड मॉर्निंग करते हैं। सो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से तलावत की गई है चौथी आयत से, तो आए चौथी आयत में से खुदा के कलाम को देखें। गलतियों उसका पहला बाब उसकी चौथी आयत से हम खुदा के कलाम को देखेंगे। तो हमने बात की थी फजल और इत्मीनान की, जिससे खुदा ने हमें बड़ा अच्छे से बरकत दी, उसकी शुक्रगुजारी। आए चौथी आयत देखते हैं। अब पौलुस जो है, अंडरलाइन करें, हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया, हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया, इसको दायरा लगाएं, और अपने आप को दे दिया, फिर इसका अलग से कर दें, फिर इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शी। फिर तीसरी अंडरलाइन करें या दायरा लगा दें कि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक। तो अब ये जरा देखिए कि हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया, एक हिस्सा ये है। फिर इस मौजूदा खराब जहान से हमारी खलासी हुई, और दूसरा क्या, हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक ऐसा हुआ। सो आए इस बात को जरा देखें। पौलुस जो है वो अपने सामने लोगों को, कायरीन को, वो ये निजात की भारी कीमत याद दिलाता है कि देखें हमारे लिए निजात की एक भारी कीमत दी गई है, जहां पर ये लिखा है ना कि हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया। तो इन लफ्ज़ों पर गौर करें कि खुदावंद यीशु ने ये किया था कि हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया। तो इसलिए ज़रा ये देख लीजिए कि किसने दिया है, ठीक है। उसमें कोई इंसान नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई रियाजत नहीं है, कोई इल्म नहीं है, कोई गिनती नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारे गुनाहों के लिए किसी को दिया गया है, और जिसको दिया गया है वो यीशु मसीह है। वो ये आपको नोटिस कराना चाहता है और ये बताना चाहता है। फिर अगर उसने गुनाहों के तस्फिया की खातिर क्या किया था, अपने आप को दिया था। किसने दिया था? यीशु मसीह ने दिया था। यीशु मसीह ने इसलिए दिया था कि मेरे और आपके गुनाह मिटा दिए जाए, मेरे और आपके गुनाह खत्म कर दिए जाए, मेरे और आपके गुनाह धो दिए जाए, इसलिए यीशु मसीह दिया गया था। और अगर उसके बाद भी हम किसी ऐसी प्रैक्टिस को कर रहे हैं, किसी ऐसी रियाजत को कर रहे हैं, किसी ऐसे कायदे को कर रहे हैं, और दुनिया में किसी और को मान रहे हैं, देख रहे हैं, और सोच रहे हैं कि इससे ऐसा कुछ होगा, तो फिर मैं और आप बहुत बड़ी गलती पर है। तो यहाँ पर जो सिखाया कि तो हमारे लिए ऐसे काम में इजाफा करना गैर जरूरी भी है। मतलब अगर जब यीशु दे दिया गया है आपके गुनाहों के लिए ताकि आपके गुनाह मिटा दिए जाए, उसके बाद आप कोई भी काम करते हैं तो वो गैर जरूरी काम है और नामुमकिन भी है। और शरीयत के अमाल से अपने गुनाहों का कफारा देने की कोशिश भी गैर जरूरी और नामुमकिन है। मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती। पौलुस गलातियों की कलीसिया को समझा रहा है कि भाइयों ताड़े लिए यीशु तुम्हारे गुनाहों के लिए दे दिया गया। अब उसके बाद आप कोई भी अमल करते हैं, कोई भी ऐसी बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, तो वो गैर जरूरी अमल है, वो बेफायदा है, उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह ये कोशिश नामुमकिन है, और ये काम जो इजाफी काम हम करते हैं, लोग देखें पता नहीं क्या कौन कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं अपने गुनाहों को से निजात पाने के लिए। तो अब असल में वो कहना क्या चाहता है? वो कहना चाहता है, जरा सुन लीजिए, इस आयत का मतलब सुन लीजिए। वो कह रहा है कि मसीह वाहिद और काफी निजात दहिंदा है,
اور مسیح نے ہمیں کیا کیا؟ اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشنے کے لیے جان دے دی ہے۔ ہیلیلویا! بیٹا دے دیا گیا اور صرف مسیح کافی ہے ہمارے پاپوں کی رہائی کے لیے، اور اس نے ہمیں اس خراب جہان سے خلاصی بخشنے کے لیے اپنی جان دے دی ہے۔ تو اس بات کو ذرا آپ سمجھ جائیں گے تو آپ ساری دنیا کے گورکھ دھندوں سے آزاد ہو جائیں گے، آپ دنیا کی غلط تعلیمات سے آزاد ہو جائیں گے، آپ جو ہے مختلف طرح کی ریاضتوں سے، پریکٹسوں سے، اعمال سے، ثواب سے آپ کی جان چھٹ جائے گی۔ خراب جہان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ہمارے زمانے کی سیاسی خرابی ہی نہیں بلکہ مذہبی دنیا کی خرابی بھی شامل ہے، اور مذہبی دنیا کی خرابی یہ ہے کہ مسیح پر ایمان کے ساتھ وہ مجھے اور آپ کو یہ سکھاتے ہیں، مسیح کے ایمان کے ساتھ وہ مجھے اور آپ کو شرائع رسوم کی ملاوٹ کرنا سکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں رسمات بھی پھنسے رہنا ہے، شریعت بھی پھنسے رہنا ہے، اعمال میں بھی پھنسے رہنا ہے، اور یہ بھی کرتے رہنا ہے۔ اور اس لیے پولس گلتیوں کو کیا کرتا ہے؟ برموقع یاد دلاتا ہے۔ کیا یاد دلاتا ہے؟ جو اوپر ہم نے پڑھا، تو وہ کہتا ہے تم اس نظام کی طرف واپسی جا رہے ہو، حالانکہ تمہارے لیے تو یسوع دے دیا گیا ہے، تمہارے لیے یسوع صرف دیا نہیں گیا، اس نے اپنی جان تمہارے پاپوں کے لیے لٹا دیا۔ اب تمہیں اس خراب جہان سے اس نے آزادی دے دیا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے تم واپسی جا رہے ہو۔ کہاں؟ رسموں میں۔ کہاں جا رہے ہو؟ مشن کے رول آف ریگولیشن میں۔ کہاں جا رہے ہو؟ شریعت میں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اعمال میں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اپنی پریکٹس سے ثواب کمانے اور اپنے پاپوں سے رہائی پانے کے لیے۔ تو وہ انہیں بر وقت یاد دلاتا ہے کہ تم واپسی جا رہے ہو جس سے خداوند یسوع نے تمہیں نکالا تھا اپنی جان دے کر، اور بچانے کی خاطر مسیح نے اپنی جان دی تھی کہ تمہیں اس خراب جہان سے نکال لے، ان کے گورکھ دھندوں سے نکال لے، ان کی مشکلات، ریاضت سے، قاعدوں سے، ان کی اپنی کمائی سے نجات پانے کی کوششوں سے نکال لے آپ کو۔ تو گلتیوں مجھے ایسے لگتا ہے تم واپسی جا رہے ہو۔ مسیح نے جو خلاصی بخشی ہے، اب میری بات سنیے، جب مسیح نے اپنی جان دے کر ہمیں آزاد کیا ہے، ہمیں خلاصی بخشی ہے، اب مجھے بتائیے پھر ہماری کون سی کام اور یہ دنیا کے اس جہان کے کیا؟ اور میں آپ کو بتاؤں مسیح نے جب یہ بخشا تو تیسری بات ہم نے یہاں پر انڈر لائن کی ہے، ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ نیک نامی اور تعریف کو اس جگہ رکھتی ہے جہاں ہونی چاہیے۔ یہ نیک نامی انسان کی حقیر اور ناچیز کوششوں کی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ یہ نجات انسان کی حقیر ناکام کوششوں سے نہیں ہے، بلکہ خدا کی آزاد مرضی کی ہے۔ پولس کا یہ مقولہ اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ فقط مسیح ہی خدا کی طرف سے نجات دینے کا ذریعہ ہے۔ بولو ہیلیلویا! اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا باپ کی مرضی سے صرف ایک ہی نجات دہندہ ٹھہرا، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ جب وہ تیرے لیے دے دیا گیا تجھے اس خراب جہان سے نکالنے کے لیے، تو پھر اب باقی کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ غیر ضروری ہے اور اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، اور دوسرے لفظوں میں کہتا ہے دوسرا کوئی نہیں۔ لکھا ہے کتاب مقدس میں، اعمال کی کتاب غالباً 4 باب کی 12ویں آیت میں، کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ بولو ہیلیلویا! اس لیے اب مسیح میرے لیے کافی ہے، اس کا کفارہ میرے لیے کافی ہے، اس نے مجھے دے کر جہان کی خرابی سے ہمیں مخلصی بخشی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کو اس دنیا کو بہتر اور جدید بنانے کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک نہ اسے یہ دلچسپی تھی کہ انسان یہاں عیش و آرام سے جو ہے، اسے دلچسپی تھی کہ صرف انسان عیش و آرام سے رہے، یہ بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے اگر دلچسپی تھی تو صرف یہ تھی کہ اس سے خلاصی، یعنی انسان کو خلاصی ملے، انسان کو نجات دے، اور چنانچہ ترجیحات اس کی یہی تھی اور یہی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی شخص نجات پائے۔ آئے 5ویں آیت پڑھتے ہیں، ذرا 5ویں آیت پڑھ دیجیے۔ اس کی
तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे, आमीन। वाह वाह वाह, तमजीद को जरा अंडरलाइन कर दीजिए। कहता है फजल की खुशखबरी के मुताबिक इंसान की निजात के लिए, फजल की खुशखबरी है ना कि भी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, यीशु ने जान दे दी, आप उस पर ईमान लेकर आए, आपके पाप मिटा दिए गए। अब आपको किसी रियाजत, किसी अमल, किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो ये फजल है, तो इसके लिए तमजीद है, खुदा की तमजीद किया करे। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्रिश्चियन जब गीत गाता है, तमजीद करता है, तो याद रखिए वो सवाब कमाने के लिए नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि मेरे इस तरह तमजीद करने से, गीत गाने से मेरे पाप मिटेंगे। ना 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 ना। क्रिश्चियन जब भी वर्शिप करता है तो इसलिए करता है कि उस पर फजल हुआ है, उसको उसके पाप यीशु ने मिटाए हैं, उसके लिए यीशु ने कफारा दिया है। इस खुशी में वो खुदा की तमजीद करता है। हालेलुया। मैंने देखा लोग इसलिए तमजीद करते और रब नू राजी कर रहे होंगे। याद रखिए, खुदा को राजी करने का कोई दुनिया में मेथड नहीं है, तरीका नहीं है, अमल नहीं है, कोई रियाजत नहीं है। बस एक ही तरीका है, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माने और इससे आप अपने पापों से, इस खराब जहान से मखलिसी पाएंगे। अब क्रिश्चियन जब भी दुआ करता है वो उसके उस फजल के लिए तमजीद करता है जो यीशु मसीह के वसीला से। आपको पता है मैं और आप सुबह सवेरे क्यों उठते हैं? इसलिए नहीं उठते कि हम पर कोई फर्ज है, इसलिए भी नहीं उठते कि कोई हमें कोई सवाब मिलेगा, इसलिए भी नहीं उठते कि जी यीशु दी नजर च असीं बड़े नेक बन जाएंगे, इसलिए भी नहीं उठते कि जी इस तरीके से हम निजात पा जाएंगे। हम तो इसलिए उठते हैं कि क्योंकि उसने हम पर फजल किया है। उठकर हम उसकी मोहब्बत में उसके साथ उसकी तमजीद करते हैं, उसके गुण गाते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके प्यार का इजहार करते हैं। हम तो उसके प्रेम में उठते हैं। हालेलुया। तो ये वो बताता है कि फजल की खुशखबरी के मुताबिक इंसान की निजात के लिए तमाम तमजीद जलाल खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। हालेलुया। इंसान शरीयत पर अमल करके ना तो निजात दहिंदा का शरीक बन सकता है और ना इसकी तमजीद में हिस्सेदार बन सकता है। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं अब आपको ये बात सिखाता हूं। देखिए, अगर आपने कोई अपना अमल करके ही निजात पाई है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी मैं कोई 200-400 दफा ऊपर नीचे बैठा हूं, बैठक मैंने की है 400 दफा, तो इस वजह से मैंने निजात पा ली। चलो मान लो आपने ऐसा अमल किया, आपने उससे निजात पा ली। अब खुदा की तमजीद तो बनती नहीं, खुदा की तो तमजीद नहीं बनती क्योंकि वो तो आपने अपने अमल से किया है। आपने 400 दफा उठक बैठक की है, अब खुदा की तमजीद करने का क्या तुक बनता है? बनता ही नहीं। अब मैं बताऊं, क्रिश्चियन इसलिए खुदा की तमजीद करता है, उसे दुनिया का कोई अमल नहीं करना पड़ा, बल्कि मेरे यीशु ने मेरे और आपके लिए सलीब पर गुनाहों का कफारा देकर जान दिया। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। अब जब मैं उस पर ईमान लाकर निजात पा गया, अब मैं तमजीद करता हूं। अब मैं तमजीद क्यों करता हूं? कि खुदावंद मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझ पर तेरा फजल हुआ है, मुझे मुफ्त निजात मिली है। मैं इसलिए तेरे घर आता हूं, मैं इसलिए तेरे गीत गाता हूं, मैं इसलिए कलीसिया का हिस्सा बना हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू लॉर्ड बिकॉज यू आर कमिंग सून। हालेलुया। और वी से विद द होली स्पिरिट जीसस क्राइस्ट कम, वी आर वेटिंग फॉर यू। हालेलुया। तो हम तो खुदावंद की इसलिए तमजीद करते हैं। तो इसलिए ऐसे जब हम खुदावंद की तमजीद करते हैं तो उसके कफारे में शरीक होकर तमजीद कर सकते हैं। आए इन पांचों आयात का इन 5 आयात का जो हमने पीछे पढ़ी है, एक एक जुमला नहायत पुरमायनी है। चंद अल्फाज में बड़ी सच्चाई बयान कर दी गई है। पौलुस ने उन 2 अहम मौज़ूआत का इख्तिसार से जो है वो पेश किया है। नंबर 1, वो पता क्या करेगा? बहस करेगा अपने रसूल होने पर और अपने इख्तियार पर बात करेगा। आगे जाकर हम यही देखेंगे। और दूसरा, वो खुदा के फजल की खुशखबरी पेश करेगा गलतियों के सामने। बोलो हालेलुया। अब देखिए, आपका ज़हन मैं बना रहा हूं और ये बाइबल मुकद्दस आगे बता रही है कि 2 चीजों पर बात होगी। एक ये कि वो बताएगा कि मैं खुदावंद का रसूल हूं और मेरे पास इख्तियार है।
دوسرا وہ یہ بتائے گا کہ فضل کی خوشخبری ہے، میں نے تمہیں فضل کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں کوئی مکسچر نہیں، میں تمہیں ریاضت میں نہیں، میں تمہیں ٹریڈیشن میں نہیں، میں تمہیں شریعت میں نہیں، میں تمہیں کسی اعمال میں نہیں پھنساؤں گا، جو خوشخبری جیسے ہے ویسے ہی بتاؤں گا اور فضل کی خوشخبری بتاؤں گا۔ ہیلیلویا۔ تو آئیں ذرا 6 اور 7 آیت دونوں پڑھ دیجیے، 6 اور 7 آیت۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اوئے ہوئے ہوئے، اس سے تم اس قدر جل پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے۔ بس پوری ہوگی؟ ہاں جی 7 بھی پڑھ۔ مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ویسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ آمین۔ اچھا، اب 6 اور 7 آیت میں ذرا دائرہ لگا لیجئے۔ اب دائرہ لگانے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے کہ وی آر فوکس ان دس ورس اسپیسیفک دس ورڈ، رائٹ؟ اور سم ٹائم all of the passage we are under the one verse. This means we are meditate only on this verse, right? When we are focus only one words in the verse, this means we are when we under the line or round the line, round the words, we put the line. This means we are focusing specific words. تو ایک لفظ کو یہاں پر دائرہ لگائیں تعجب، ٹھیک ہے، اور پھر لگائیں مسیح کے فضل، اس کو دائرہ لگائیں، اور پھر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہو گئے، اس کو پورے کو دائرہ لگا لیں۔ اب تو نیچے لکھا ہے وہ تمہیں گھبرا دیتے ہیں، تو اس کو پھر ایک ہی جملے میں ہم دیکھ لیں گے۔ آئیں پہلے اس کو دیکھیں۔ سو پولوس ایک دم جو ہے وہ غلطیوں کا سامنا کرتا ہے، وہ ایک غلط بات کو ماننے پر بہت جلد لکھا ہوا ہے، لفظ لکھا ہوا آپ کی آیت میں جلد لکھا ہوا ہے، اس کو بھی دائرہ لگا دیں۔ وہ کہہ رہے کہ بڑی چھتی کیتی تسی، جلد تیار ہو گئے۔ وہ تعجب کرتا ہے کہ تسی اتنی چھتی تیار ہو گئے جلد، کہتے ہیں میں تعجب کا اظہار کرتا ہے۔ کیا تعجب کا اظہار کرتا ہے؟ کہ انہوں نے خوشخبری کی سچائی کو یوں اچانک چھوڑ دیا، خوشخبری کی سچائی کو اچانک چھوڑ دیا، اس بات سے وہ تعجب کرتا ہے اور کہتا ہے بڑی جلدی چھاڑ دیتا ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کہتا ہے کہ تمہارا یہ اقدام خدا کو چھوڑ کر ایک جھوٹی خوشخبری کو قبول کرنا ہے۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، ایک خوشخبری آپ کو یہ دی جا رہی ہے جو بائبل کی خوشخبری ہے کہ بھئی آپ کے لیے یسوع مسیح بے گناہ، وہ جلال کا خداوند زمین پر آیا اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور میرے اور آپ کے لیے صلیب پر اس نے جان دی، اور ہم اس پر ایمان لے کر آئے اور ہمیں ایمان سے نجات مل گئی۔ یہ خوشخبری۔ اب کچھ لوگ اس سے ہٹ گئے، جلدی سے پھر گئے۔ وہ رسول کہتا ہے مجھے تعجب ہوا ہے، پھر کر تم اور ہی خوشخبری کی طرف چل گئے۔ اب اور خوشخبری کیا ہے کہ لوگ تمہیں کہتے ہیں نہیں بھائی، خالی ایمان نہ نہیں گزارا چلے گا، آپ یہ بھی کیا کریں، آپ یہ بھی کیا کریں، آپ یہ قاعدہ بھی پڑھا کریں، آپ یہ چکر بھی لگایا کریں، آپ یہ بھی کیا کریں، آپ اتنی گنتی کیا کریں۔ تو ہمیں کس میں پھنسا دیا؟ عمال میں پھنسا دیا۔ تو ہم نے وہ خوشخبری چھوڑ کر جو اپنی نیکی، اپنے سے خود سے ہم خوشخبری کو لینا چاہتے، تو وہ اس سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم خوشخبری کو قبول، تم نے چھوڑ کر ایک جھوٹی خوشخبری کو قبول کیا، جھوٹی خوشخبری کو۔ یعنی خدا نے ان کو مسیح کے فضل سے بلایا۔ سارے بولے کس کے فضل سے بلایا؟ مسیح کے فضل سے۔ یعنی آپ کے لیے مسیح کفارے کے طور پر دیا گیا، یہ مجھ پر اور آپ پر فضل ہوا۔ میرے اور آپ کے پاپوں کی سزا یسوع نے اٹھا لی، اور اب مجھ پر یہ فضل ہو گیا کہ میرے گناہوں کی سزا یسوع مسیح نے اٹھائی ہے، میرا کفارہ دیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں ایک وادی کا بتا رہا تھا، اکور کی وادی کا۔ اکور کی وادی میں جو ہے اکن اور اس کے خاندان کو پتھروں سے مار دیا گیا، گناہ کی سزا تھی۔ لیکن ایک جگہ پر میں نے اور اکور کی وادی بتائی جہاں پر وہاں پر زندگی بڑھ رہی ہے، وہاں پر جو ہے سزا نہیں دی گئی، وہاں پر پھلدار ہو رہا ہے۔ تو وہ کیا تھی؟ وادی تو اکور کی ہے، لیکن اب وہاں پر ایسا نہیں ہو رہا۔ تو ہوا کیا تھا کہ
उस जगह पर मसीह को रिप्रेजेंट किया गया कि मसीह ने मेरे और आपके पापों की सजा को क्या कर लिया, उठा लिया। अब हमें सजा नहीं बल्कि ब्लेसिंग, अब हम पर फजल हुआ। तो यहां पर भी वो ये कह रहा है कि तुम पर यीशु मसीह का फजल हुआ, तुम उसे छोड़कर तो झूठी खुशखबरी की तरफ लग गए, और झूठी खुशखबरी लोगों ने आपको ये बता दिया कि तुम ये करोगे, ये होगा, ये करोगे, ये करोगे, और अपने अमाल से, अपने कामों से, अपनी नेकियों से आप कमाओगे निजात को, तो आप इस पर लग गए। सो अब वो खुद को शरीयत की लानत के मातहत ला रहे थे। उन्होंने हकीकी और सच्ची खुशखबरी को कबूल किया था, अब वो उसे छोड़कर, अंडरलाइन करें, किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल हो गए। यानी कि वो एक ऐसी मुश्किल में पड़ गए हैं कि वो सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो निजात पाएंगे, ये करेंगे तो निजात पाएंगे, ये करेंगे तो निजात पाएंगे। लेकिन पौलुस कहता है किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल हो गए। अब देखिए, मैं बताता हूं आपको। एक तरफ आपके सामने यीशु मसीह आपके मेरे पापों के लिए, गुनाहों के लिए मसलूब हुआ है, आप उस पर ईमान लाएं और मुफ्त निजात पाएं, और ये फजल हुआ, और अब मेरे और आपके गुनाहों को यीशु मसीह ने उठा लिया। दूसरी तरफ आपको कोई भी अमल, एक्ट, तरीका, भाग दौड़, रियाजत, कुछ भी वट एवर बताया जाता है, और वो झूठी खुशखबरी है। तो ये जल्दी से इधर से फिरकर इस तरफ आ गए। आज भी कई लोग हैं यीशु मसीह को कबूल करते हैं और उसके पाप मिटा दिए जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ कुछ लोग उन्हें घबरा देते हैं। यहां पर जो 7वीं आयत में लिखा है, तो वो कहता नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है, बल्कि क्या हुआ है कि क्यों तुम मातहत हो गए। उन्होंने हकीकी और सच्ची खुशखबरी को कबूल किया था, किन्होंने, गलतियों ने। अब वो उसे छोड़कर किसी और खुशखबरी की तरफ माइल हो गई। तो दरअसल खुशखबरी वो थी नहीं जिसकी तरफ वो माइल हो गए। तो ये एक बिगड़ा हुआ पैगाम था। तो ये फजल और शरीयत का एक अमेजिश था। अब कैसे वो दूसरी तरफ चले गए, जरा 7वीं आयत पढ़े। उसकी वजह थी, आज भी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो आपको घबरा देंगे और आपको एक मुश्किल में डाल देंगे। पढ़िए 7वीं आयत में क्या लिखा। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता, कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? नहीं, 7वीं आयत पढ़े। मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं, हाँ, बाज ऐसे हैं, क्या हैं, पढ़े, जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते। अच्छा, अब ये कौन थे? ये झूठे रसूल थे, झूठे खादम थे, झूठे पासबान थे, झूठे प्रीस्ट थे, जो उन्हें मसीह की खुशखबरी के साथ अमेजिश करना सिखाते थे और रस्मों और बातों में भी क्या करते थे, फंसा देते थे। आए 8वीं और 9वीं आयत को देखेंगे, जरा पढ़िए। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई, कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए, तो मलून हो। आमीन। अच्छा, मलाउन हो। अब अंडरलाइन करें, हम किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले कोई और खुशखबरी, इसको मैं अक्सर कहता हूं, 2 टाइप ऑफ द क्राइस्ट, 2 टाइप ऑफ द गॉस्पल, 2 टाइप ऑफ द स्पिरिट। यहां इसे ये कहते हैं अदर क्राइस्ट, अदर स्पिरिट, अदर गॉस्पल। तो आज लोग दूसरी खुशखबरी की तरफ भाग जाते हैं, दूसरे मसीह की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि हकीकी मसीह क्या और हकीकी रूह क्या। तो यहां पर अंडरलाइन कीजिए, कोई और खुशखबरी। पहले इसको दायरा लगा ले, फिर दायरा लगाए मलाउन। मलाउन का मतलब होता है लानती। और फिर दायरा लगाएं आसमान का कोई फरिश्ता। ठीक है, इस पर हम गौर करेंगे। आए जरा देखिए। सो पौलुस 2 दफा पूरी संजीदगी से कहता है कि जो कोई भी कोई और खुशखबरी सुनाता है, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो मलाउन है। याद रखिए, मेरी बात सुनिए। अब मैं जो कहने लगा, खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मसलूब हुआ है। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो रिहाई पाएगा, इस जहान खराब से मखलसी पाएगा, हर तरह की दुनिया की रियासतों से पाएगा, और मसीह की तमजीद करता हुआ उसका इंतजार करेगा। अब इसके अलावा तुम्हें कोई और खुशखबरी सुनाए, खुशखबरी ये, इसके अलावा तुम्हें कोई और खुशखबरी सुनाए, तो बाइबल कहती है वो मलाउन है। वो क्या है? मलाउन, यानी लानती।
गुनाहगारों के लिए खुदा के पास सिर्फ एक ही पैगाम है, यानी वो शरीयत के अमाल से बिल्कुल हटकर सिर्फ ईमान के वसीला से फजल से निजात पेश करता है। खुशखबरी एक ही है और वो ये है कि हमने ईमान से, यीशु पर ईमान लाकर फजल से निजात पाई है। सो निजात के किसी और तरीके या वसीले की मुनादी वो लाजमन मलाउन है। देखें मेरी बात सुनिए, हमने कैसे, मेरा आज आपसे सवाल है, क्रिश्चियन खुशखबरी क्या है? क्रिश्चियन खुशखबरी ये है कि हम यीशु पर ईमान लाए और हम पर फजल हुआ और हमने निजात पा ली, बस। इसके बाद अगर आपको कोई भी निजात के लिए कोई तरीका बताता है या कोई वसीला बताता है, कोई जरिया बताता है, कोई और रास्ता बताता है, तो वो लाजमन मलाउन है, वो लानती है। बाइबल कहती है उनको का सजा का फैसला हो चुका है। सो ऐसे पैगाम की मुनादी करना कैसी संजीदा बात है जिसका अंजाम रूहों की अबदी हलाकत हो। अगर देखिए कोई बंदा आपको ये बता रहा है कि जी नहीं निजात पान लिया, करना पेगा निजात पान लिए, ये तो समझे कि बस होते, फिर पता की काम कर रहा है, लोगों को हलाकत में पहुंचा रहा है। तो मुझे ये बताइए ऐसा शख्स तो फिर मलाउम हुआ। सो पौलुस ऐसे झूठे उस्तादों को कतन बर्दाश्त नहीं करता और ना हमें ही बर्दाश्त करना चाहिए। खुदा का एक खादिम है जॉन स्टार्ट, वो क्या कहता है जरा सुनिए, वो हमें खबरदार करता है। सुनिए वो क्या कहता है। कहता है हमारी आंखें कलीसिया के अंदर उस्तादों के मनसब पर या उनकी नेमतों, सलाहियतों या उनकी शख्सियत से चुंदिया ना जाए, जैसा कि अक्सर लोगों की चुंदिया जाती है। हो सकता है वो बड़े वकार, इख्तियार और इल्मियत के साथ हमारे पास आए, वो बिशप हों या आर्च बिशप हों या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों या बजाते खुद कोई भी मजहबी ओहदा बड़ा रखता हो। अगर वो उस खुशखबरी के अलावा जो रसूलों ने दी और नए अहदनामे में मरकूम है किसी और खुशखबरी की मुनादी करते हैं, तो जरूर है कि उन्हें रद्द किया जाए। हम उनको खुशखबरी की कसौटी पर परखते हैं, ना कि खुशखबरी को उनकी कसौटी पर हमें जांचते हैं। जैसा कि डॉक्टर एल्वन कोल ने कहा, क्या कहा सुनिए जरा गौर से। डॉक्टर एल्वन कोल ने कहा कि मुबशर की जाहिरी और खारजी शख्सियत पैगाम की सेहत की तौसीक नहीं करती, बल्कि पैगाम की नौयत मुबशर के सच्चे होने की तौसीक करती है। गौर करें आयत में क्या लिखा है, ये जरा गौर करें। लिखा है, ये नहीं लिखा खुदा का फरिश्ता आएगा, ये नहीं लिखा, क्योंकि इन दिनों मैं फ्राइडे मीटिंग में पढ़ा रहा हूं खुदावंद के फरिश्ते, और ये भी पढ़ा रहा हूं कि फिजा में क्या है और ईवल क्या है, बदरूहें क्या है, गिराए हुए फरिश्ते क्या हैं। तो यहां पर क्या लफ्ज लिखा है जरा बताइए। क्या ये लिखा हुआ है कि खुदा का कोई फरिश्ता आए? क्या लिखा हुआ है? हाँ, आसमान का फरिश्ता। तो फौरन ख्याल आता है कि आसमान का कोई फरिश्ता, इसका क्या मतलब है? तो ये कहां हमें मिलेगा? दूसरा क्रंथियों 11वें बाब की 14वीं आयत जरा पढ़िए, और इफ्सियो 6 बाब की 12वीं आयत। ये आसमान के फरिश्ते क्या? वो गिराए हुए फरिश्ते या वो बुरी रूहें या वो बदकार रूहें, ये उनकी बात हो रही है। खुदा का फरिश्ता कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगा। मैंने अपनी फ्राइडे बाइबल स्टडी में लॉर्ड्स एंजल पढ़ाए हैं। लॉर्ड्स एंजल्स नेक फरिश्ते होते हैं और वो हमेशा आपको बाप और बेटे और रूह कुछ और बाइबल मुकद्दस से कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। तो यहां पर ये नहीं लिखा कि कोई खुदा का फरिश्ता आएगा, बल्कि ये लिखा कि आसमान का। तो पहला पढ़िए दूसरा क्रंथियों 11वें बाब की 14वीं आयत, या वो भी पढ़ दीजिए इफ्सियों 6:12। क्या पढ़ रहे हैं बताइए? हाँ जी, दूसरा क्रंथियों 11:14 पढ़िए। 11-14 हाँ जी, 11वें बाब की 14वीं आयत। और कुछ अजीब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। सुना आपने? शैतान भी नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। तो ये याद रखिए कि खुदा का फरिश्ता कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगा। इस जगह पर खुदा का नहीं फरिश्ता लिखा, आसमान का लिखा है। अब जरा पढ़िए इफ्सियों 6:12। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे और दुआ करेंगे। जी
इफिसियों 6:12। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों से और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में कहां पर है? आसमानी मकामों पर। ये खुदा के फरिश्ते नहीं है, ये शरारत की फौजें हैं। तो यहां पर जरा सीख लीजिए, तो हमें खुदा का फरिश्ता कभी मिसगाइड नहीं करेगा। तो वापसी अपने हवाले में आइए कि आसमान का कोई फरिश्ता, पौलुस ने कहा, उसने खुदा का कोई फरिश्ता नहीं कहा। गौर करें, उसने कहा कि आसमान का कोई फरिश्ता झूठा पैगाम ला सकता है, खुदा का फरिश्ता कभी नहीं लाएगा। जबकि खुदा का कोई फरिश्ता ऐसा नहीं कर सकता। खुशखबरी की यकताही को जुबान इससे ज्यादा फसाहत से बयान नहीं कर सकती। सो ये ही निजात का वाहिद रास्ता है। कौन? यीशु मसीह। अपनी कोशिश या इंसानी काबिलियत का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। सिर्फ खुशखबरी ही बगैर कीमत या पैसे के निजात बख्श हमें मिली है, पेश की गई है, बगैर कीमत के, बगैर पैसे के, बगैर रियाजत के, बगैर प्रैक्टिस के, बगैर अपने किसी अमल के, बगैर कोई और रास्ते के, बगैर किसी और जरिए के, सिर्फ एक ही जरिए, यीशु मसीह। हालेलुया। उसके वसीला से हमें खुशखबरी निजात मिली है। सो इसके मुकाबले में शरीयत उनके लिए यानी कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल जो है उनके लिए लानती ठहरता है। सो जो इस पर अमल करने से कासिर रहते हैं, मगर खुशखबरी उनके लिए लानत रखती है जो इसको बदलने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, मैं और आप खुशखबरी को नहीं बदल सकते। अगर हम बदलते हैं तो फिर वो हमें क्या ठहराती है? लानती ठहराती है। सो खुदावंद की आए शुक्रगुजारी करें खुदावंद की उस बड़ी खुशखबरी के लिए, और हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, हमारा जो मैं एंजल्स के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो हमारी फ्राइडे मीटिंग में बहुत पावरफुल क्लास जारी है। बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं, सीख रहे हैं, उनकी आंखें खुल रही हैं और खुदा उन्हें बरकत दे रहा है। तो आज भी इस बात को हमने सीखा है। सो आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। बिनिश के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, आज की तालीम के लिए और आज के दिन के लिए, और जितने ऑनलाइन हैं आपके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। कदूस है मेहरबान जिंदा खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती आज के दिन के लिए और इस लम्हात के लिए। ए रब्बुल अफ़ाज, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ए खुदावंद खुदा, तेरे फजल के लिए, खुदावंद खुदा, तेरा फजल ही हमारी जिंदगियों के लिए काफी है। ए खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरा फजल ही हमें हर सुख सवेरे उठाकर, ए खुदावंद खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ए खुदावंद खुदा, तेरे कलाम के लिए, अजीमुल्लाह के लिए, शहजाद सुंदर एवेंजलिस्ट शहजाद जो हमारी जिंदगियों के लिए है। ए खुदावंद खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम हर रोज तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में लेते हैं। ए खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी सताइश करते हैं, हम तेरे नाम को पुकारते हैं क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है। ए खुदावंद खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। ए खुदावंद खुदा, हम कुछ नहीं है, लेकिन ए खुदावंद खुदा, तेरा फजल ही हमारी जिंदगियों के लिए काफी है। ए खुदावंद खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज पूरे दिन को। ए खुदावंद खुदा, हम तेरे पाक लहू में डीप करते हैं। ए खुदावंद खुदा, जो कुछ करे, जो कुछ सोचे, तेरी रूह और तेरी हदायत से करे। ए खुदावंद खुदा, हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, ए खुदावंद खुदा, तेरे जलाल के लिए हो। ए खुदावंद खुदा, तू हमें बरकत दे, अपने पाक रूह को हमारी जिंदगियों पर उंडेल। ए खुदावंद खुदा, तेरा पाक रूह हमारी जिंदगी पर जुम्बश करे, हमारे घरानों पर जुम्बश करे, हमारे बच्चों पर जुम्बश करे, हमारी जिंदगी पर जुम्बश करे, हमारे कारोबार पर जुम्बश करे, हमारी जिंदगियों पर जुम्बश
بخش کرے. اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہمارا کھانا پینا اے خداوند خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تیری دی ہوئی نعمتوں کے لیے, تیرے فضل کے لیے. اے خداوند خدا جو تو ہماری زندگیوں پر نازل کرتا ہے, اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. جتنی زندگیاں اے خداوند خدا ہمارے ساتھ آن لائن ہیں, اے خداوند خدا ان زندگیوں پر اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں. ان کے گھرانوں پر, ان کی زندگیوں پر, ان کے بچوں پر, ان کی آسولات پر, اے خداوند خدا ان کے کاروبار پر, اے خداوند خدا ان کے گھرانوں پر, ان کے کچن پر, ان کے اٹھنے بیٹھنے پر, چلنے پھرنے پر. اے خداوند خدا میں تیرے جلال کو چاہتی ہوں, تیری حکمت کو چاہتی ہوں, تیرے فضل کو چاہتی ہوں, تیرے روح کو چاہتی ہوں. اپنے کلام کو ان کی زندگیوں پر اے خداوند خدا نازل کر, تاکہ اے خداوند خدا ان کی زندگیوں میں اے خداوند خدا تیرے نام کو عزت و جلال ملے. اے خداوند خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے, اپنے کلام کی قوت سے, اپنے کلام کی قدرت سے ان کی زندگیوں سے کلام کر. ان کی زندگیوں میں اے خداوند خدا تیرے کلام کو چاہتی ہوں. اے خداوند خدا تیری برکت ان کے خاندانوں پر, ان کے بچوں پر, اس بڑی نجات کے لیے تیرا شکر. یہ کلام ان کے لیے باعث برکت ہو. اگر یہ کسی پریشانی میں ہے, دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, اے خداوند خدا تیرا کلام انہیں ہیل کرے, تیرا کلام انہیں شفا دے, تیرا کلام انہیں بحالی دے. اے خداوند خدا ان کی زندگیوں میں شادمانی آئے, خوشی آئے. اے خداوند خدا ہر طرح کا دکھ ان کی زندگیوں سے چلا جائے. اے خداوند خدا تیری برکت طاقت ٹھہرے, تیرا پاک روح آکر ٹھہرے, تیری حکمت آکر ٹھہرے. تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تیری برکت چاہتے ہیں. اے خداوند خدا تیری برکت ان کی زندگیوں پر گہرے طور پر آ کر ٹھہرے. اور اے خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں. کلیسیا میں اے خداوند جو کوئی بیمار ہے, ان کی ہر طرح کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے. آسمان کھلے, بندن کھلے, جوئے ٹوٹے, ابلیس شرمندہ ہو. اور اے خداوند خدا تیرا نام عزت اور جلال پائے. اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے. تو چھو اور بڑی برکت دے. یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتی اور پا لیتی ہوں. آمین. پریز دا لارڈ. ہیلیلویا. پریز دا لارڈ. اس سے پہلے خداوند کی اس کا یہ دعا کہیں. خدا کی اس بڑی خوشی کے لیے خدا کا شکر. میرا دل خوشی سے, شکر گزاری سے بھر گیا اس بڑے کفارے کی وجہ سے. دل جھوم اٹھا, ناچ اٹھا. سو فرائیڈے میٹنگ ہماری آن لائن نہیں ہے سسٹر میکا ایوب, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں خدا میرے دل میں ڈال رہا ہے کہ ہم اسے آن لائن لیں. لیکن اگر آپ کوئٹہ میں ہی ہیں تو پھر آپ ضرور ہمیں جوائن کریں, کلاس میں آئیں. ورنہ آئندہ آنے والے دنوں میں میرا ایمان ہے ہم اسے آن لائن کریں گے, تو پھر ہم ضرور وہ کریں گے. تو آئیں خداوند کی اس کا یہ دعا کہیں. اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. خدا باپ, بیٹے, روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت, گھر, خاندان, زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے.